Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good afternoon. I welcome you all to this webinar. I am Dr. Farah, and on behalf of PGMI, I welcome you to this webinar that will guide you how to apply for the change of supervisor online for the session January 2024. I hope I am clearly audible to everyone. If yes, if you can please raise your hand so that we can proceed. Okay, thank you. First of all, we will start reading the announcement that was shared on website yesterday. I will be sharing my screen. This announcement was uploaded on website yesterday, and we will be reading it very carefully so that you can understand each and every point. जो नोटिफिकेशन है उसके बाद ओपन की गई थी, और पहले जो है हमने लास्ट सेशन में इसको मैनुअल किया था, बट वी आर डूइंग इट ऑनलाइन फॉर द फर्स्ट टाइम। इसमें जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन के लिए एक लिंक दिया गया है नीचे, उस पर हम अभी बाद में आते हैं, लेकिन पहले ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम को थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। ओपनिंग जो होगी वो आज यानी कि 26 जनवरी को 3 बजे या 3:30 बजे कर दी जाएगी, और पोर्टल जो है वो क्लोज हो जाएगा 28 जनवरी यानी कि संडे को एट 4 PM। वेबिनार अभी हो गया है। नेक्स्ट हम जाते हैं कि हु इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस चेंज ऑफ सुपरवाइजर। जिनका 4 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, फॉर एग्जाम्पल जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, IENT, गायनी एंड पीड्स एंड अदर 4 ईयर प्रोग्राम, साइकेट्री जिसमें आ जाता है, या एनेस्थीसिया वगैरह एक्सेट्रा जो भी है, ये सेशंस जितने भी हैं दे आर एलिजिबल। जनवरी 21, जुलाई 21, जनवरी 22, जुलाई 22 एंड जनवरी 23। जिनका 3 इयर्स प्रोग्राम है, जैसे कि सब स्पेशलिटी में जितने भी लोग हैं, जैसे कि पल्मो है, नेफ्रो है, न्यूरो है, डर्मा है, ऑन्को है, व्हाटएवर, तो उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये सेशंस हैं, जनवरी 22, जुलाई 22 एंड जनवरी 23। जो लोग अभी प्री IMM 2 इयर्स जनरल मेडिसिन एंड अलाइड एंड सर्जरी एंड अलाइड की ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके लिए जो सेशंस हैं दैट इज जुलाई 22 एंड जनवरी 23। यही सेशंस वाले लोग जो हैं चेंज ऑफ सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिसी जो है इट इज अप्रूव्ड बाय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ PGMI, एंड इसमें जो है दोज ट्रेनीज हु हैव completed 1 year of training either in general or in subspecialty will be eligible for change on the vacant slots provided by the hospitals affiliated with PGMI within the province. Trainees who have 6 months or less of training remaining are not eligible. तो हमने सेशंस ऐसे फिक्स किए हैं कि दोनों लोग जो हैं वो एक्सक्लूड हो जाते हैं। Any loss of training, deficiency in training, or reduction of stipend during the process of change of supervisor will be the responsibility of trainee. Any penalty or refusal due to any reason, including time limit, expiry of deadline of re-registration with CPSP for this change, will be the responsibility of resident. Supervisor change process will be done on merit on session-wise slots provided by all the associate deans and principals. I know आप सबके जहन में यही होगा कि वेकेंट स्लॉट्स अभी तक हमें नहीं शो किए गए। फॉर दैट आई एम सॉरी, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज की वजह से जो है सेशन वाइज स्लॉट्स थोड़े लेट हो जाते हैं हॉस्पिटल्स की तरफ से, बट 1-2 घंटे में हमारी IT की जो टीम है वो वेकेंट स्लॉट्स अपलोड कर देगी वेबसाइट पे। तो आपका जो भी सेशन होगा आप उसमें अपने वेकेंट स्लॉट्स देख सकेंगे और आपकी स्पेशलिटी भी उसमें विजिबल होगी। Slot once vacated by the trainee cannot be claimed back by the trainee who has vacated it. RTMC registration will also be at his own risk. Incomplete forms will not be accepted. Those trainees who have availed the change of supervisor opportunity for any reason previously will not be eligible for this process. This is very loud and clear. जो भी वजह होगी चेंज ऑफ सुपरवाइजर की, चाहे वो विद इन द सेम इंस्टीट्यूट हो, आउटसाइड द इंस्टीट्यूट हो, जनरल टू अनइनहैबिटेड चेंज हो, या from any other cause हो, so that will not be eligible for this process. Those trainees who are also not eligible who have availed a change of supervisor opportunity because of transfer or death of supervisor, this is very clear, it will not change. Only fresh online applications within defined time period after announcement by PGMI will be entertained.
those trainees who have applied for change of supervisor before the date of announcement shall apply fresh. PG trainees undergoing major disciplinary action are not eligible. प्रोसेसिंग फी जो है वो 1025 है, शेल बी पेएबल टू पीजीएमआई थ्रू जैज कैश। इसकी फैसिलिटी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ही मौजूद है, जो कि हम थोड़ी देर में फिल करेंगे। कुछ पार्टिसिपेंट्स ने हैंड्स रेज किए हुए हैं, तो आपके क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो एंड में एंटरटेन किए जाएंगे, सो प्लीज बी पेशेंट। अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। ये लिंक अभी फंक्शनल नहीं है, 3 बजे या 3:30 बजे ये लिंक फंक्शनल हो जाएगा, तो उसके बाद आप इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं। तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन अभी मैं एक डेमो भी करूंगी, तो उसमें आपको तरीका जो है वो ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। इस लिंक पे जब आप रजिस्टर करेंगे अपने आप को, कुछ लोगों के हेल्पलाइन पे बहुत ज्यादा क्वेरीज थी कि हम लोग अपना पुराना CNIC और पासवर्ड एंटर कर रहे हैं तो वो लॉगिन नहीं हो रहा। नो, दिस इज नॉट लाइक दैट। इस लिंक को क्लिक करने के बाद आपने रजिस्टर होना है एज अ न्यू एप्लीकेंट। After you are registered, a verification email will be sent to your email ID. Please verify and then log in. तो ये तरीका है इसका। All available slots of your session will be visible to you. Please put your preference number against all slots as per your choice and put 0 against the slots you don't want to opt. जहां आपने जाना है वहां पे आप अपनी चॉइस नंबर लिख लेंगे, 1 से लेके जो भी हो, और जहां आपने नहीं जाना वहां पे आप 0 लिख देंगे। Please attach your RTMC and NOC signed by your primary supervisor and associate dean, प्रिंसिपल ट्रेनिंग ऑफिसर। हेल्पलाइन पे बहुत किस्म के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जी NOC हम अभी साइन कराएं कि नहीं, जब स्लॉट मिल जाए उसके बाद साइन कराएं। सो आई थिंक एवरीबडी जो है दे आर मेच्योर इनफ कि NOC जब तक साइन नहीं होगी तो आपको कैसे स्लॉट मिल सकता है। योर NOC मस्ट बी साइंड बाय योर सुपरवाइजर एंड एसोसिएट डीन। इट कैन बी अ टाइप्ड NOC और इट कैन बी हैंड रिटन NOC। जैसे कि अगर कोई एप्लीकेंट है वो अपने सुपरवाइजर को या एसोसिएट डीन को एक हैंड रिटन एप्लीकेशन लिखें एक प्लेन पेज पे कि PGMI ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है चेंज ऑफ सुपरवाइजर एंड आई वांट टू चेंज माय इंस्टीट्यूट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। मेरा नेम ये है, मेरा RTMC ये है, मेरा CNIC ये है और मेरा करंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये है। नो नीड ऑफ एनी फॉर्मल NOC, अपने हाथ से ही लिखी, बट इट शुड बी कंप्लीट। और एंड में आपका साइन होना चाहिए, आपके सुपरवाइजर का और आपके एसोसिएट डीन का। बहुत लोगों की ये भी क्वेरीज थी कि सैटरडे और संडे को जो है इंस्टीट्यूट्स बंद होते हैं, लेकिन हमारे भी जो है कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर हम इसको और एक्सटेंड करेंगे तो आप लोगों के लिए ही प्रॉब्लम होगा। RTMC की डेट बहुत नज़दीक है, तो ट्राई टू गेट साइन योर NOC टुडे। तो आपके पास आज का दिन है, इसीलिए हमने कल अनाउंसमेंट कर दी थी कि जुम्मे के दिन सारे लोग अपने सुपरवाइजर से एसोसिएट डीन से साइन ले लें। तो 4 बजे तक सारे इंस्टीट्यूट्स खुले होते हैं, तो यस यू कैन टेक योर सिग्नेचर्स एंड अपलोड द NOC आफ्टर साइंड। RTMC आप सबके पास होती है। कुछ लोगों का हेल्पलाइन पे क्वेश्चन था कि जी व्हाट इज RTMC, विच इज वेरी स्ट्रेंज कि आप लोगों को अभी तक अपनी RTMC का नहीं पता। अपने CPSP के पोर्टल पे लॉग इन होके पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाके रजिस्ट्रेशन का जो भी वहाँ पे पोर्शन है उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपकी RTMC डाउनलोड हो सकती है। उसके बाद आप जब क्लिक करेंगे जनरेट वोचर बटन को, तो वहां पे आपको एक जायज कैश वोचर नंबर आपके मोबाइल पे और आपके ईमेल पे सेंड होगा। प्लीज कंप्लीट योर पेमेंट। योर एप्लीकेशन विल ओनली बी प्रोसेस्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पेमेंट। जब अभी मैं एक डेमो फॉर्म फिल करूंगी तो उसमें आपको सब तरीका बता दिया जाएगा। आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगी अगर आपने पेमेंट कंप्लीट नहीं की तो। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द स्टेप्स सबमिट योर एप्लीकेशन एंड लॉक योर प्रेफरेंसेस बिफोर क्लोजिंग डेट। Please keep visiting your change of supervisor dashboard and PGMI website regularly for latest updates. अब इसमें जो आपका डैशबोर्ड होगा ना, वो आपकी चेंज ऑफ सुपरवाइजर वाला डैशबोर्ड होगा, वो आपकी रेगुलर PGMI वाला जो डैशबोर्ड है वो नहीं एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। अगर आपको अपनी प्रेफरेंसेस फिल करने में कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, यू कैन कॉन्टैक्ट PGMI हेल्पलाइन। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप प्लीज वॉइस मैसेजेस और कॉल्स मत करें। सिंपली राइट योर नेम, आपका जो भी इंट्रोडक्शन है, योर यूनिट एंड योर प्रॉब्लम एंड यू सेंड इट इन टेक्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई मसला जो है वो प्रेफरेंसेस पोर्टल से रिलेटेड टेक्निकल इशू सॉल्व नहीं हो रहा, you can come to PGMI on Sunday, that is 28 January till 2 p.m. और हमारी टेक्निकल टीम जो है वो आपके लिए सबमिट कर देगी। और आफ्टर 2 p.m. नो एप्लीकेंट विल बी एंटरटेन। 4 बजे पोर्टल बंद हो जाएगा, लेकिन हमारी टेक्निकल टीम 2 बजे के बाद अवेलेबल नहीं होगी, इसलिए 2 बजे से पहले पहले आ जाएं इफ यू फेस एनी टेक्निकल इशू।
Be aware the closing time will not be extended. Incomplete forms will be rejected. अगर आपकी एनओसी पे सिर्फ सुपरवाइजर का साइन होगा और एसोसिएटिन का नहीं होगा, दैट विल बी रिजेक्टेड. स्लॉट एलोकेशन अब कैसे हो गई? आप सब लोग मेरे ख्याल में मोस्टली जो जितने भी इस वेबिनार के अटेंडीज हैं, दे नो कि सॉफ्टवेयर पे स्लॉट एलोकेशन कैसे होती है, बट स्टिल इट्स रिटन ओवर हेयर. जिनको नहीं पता वो इसको रीड कर लें कि slot allocation will be made through software. Once preferences are submitted, it's not possible to reopen it for any change. There is no option of surrender. Slot once allotted will be final. Those who get a slot in the slot allocation process are not eligible for any other slot in this session and in the next session as per policy. एक दफा जो slot मिल गया वही final होगा. Surrender का कोई option नहीं होगा आपके पास. All those applicants who fail to submit their preferences on portal before closing will be excluded from slot allocation process. List of vacant slots अभी हम थोड़ी देर में डिस्प्ले कर देंगे PGMI की वेबसाइट पे. So this was all about announcement. अब हम जाते हैं दोबारा से इसी अनाउंसमेंट के इस लिंक पे. जब इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और स्क्रीन ओपन हो जाएगी जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर कर रखती हूँ. तो ये आप लोगों के पास इस तरह की स्क्रीन नजर आ रही होगी. आपको सही नजर आ रहा है क्रम? इसमें आपने एज रजिस्टर एज ए न्यू एप्लीकेंट करना है. ठीक है, आपने लॉगिन नहीं करना. आप जितने भी अटेंडीज हैं, जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं फॉर चेंज ऑफ सुपरवाइजर, उन्होंने लॉगिन नहीं करना. दे हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स. मैं यहाँ पे एक डमी CNIC डाल रही हूँ, तो आप लोगों ने भी इसी तरह अपना CNIC डालना है. पासवर्ड जो भी आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं. अपना पासवर्ड कंफर्म करें यहाँ पे. ठीक है, अपना मोबाइल नंबर बहुत एहतियात से डालें क्योंकि ये वही मोबाइल नंबर है जिसपे आपको जायज कैश का वोचर आएगा. ठीक है, अपनी ईमेल यहाँ पे बहुत ध्यान से डालें क्योंकि इसी ईमेल आईडी पे आपको वेरिफिकेशन का लिंक आएगा. अगर आपने ये गलत डाल दी तो वो किसी और लिंक पे चली जाएगी. और टाइम बहुत शॉर्ट है तो आपको टेक्निकल इश्यूज जो है फेस करने पड़ेंगे. बी वेरी केयरफुल कि आप इसको ध्यान से टाइप करें. अपनी जो ईमेल है उसको दोबारा आपने लिखना है. ऊपर से कॉपी पेस्ट मत करें, दोबारा से रीराइट करें क्योंकि अगर ऊपर गलती हो गई तो वो नीचे भी हो जाएगी एंड देन आपकी जो वेरिफिकेशन लिंक है वो किसी और उस पर चला जाएगा. अच्छी तरह जब आपने सारे ब्लैंक स्पेसेस फिल कर लिए तो यू गो अबव एंड यू अगेन चेक योर CNIC. अपना पासवर्ड जो है आपने डाल दिया, अपना मोबाइल नंबर चेक कर लिया, अपना ईमेल चेक कर ली और आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का बटन क्लिक कर लेंगे. An email verification link has been sent to your email. Kindly check your inbox, spam, junk folder of your email address and verify the link. In case you have not received an email address in 30 minutes, please contact on this number. अब मैं अपनी ईमेल चेक कर लूंगी तो वहां पे आप देखें कि अकाउंट एक्टिवेशन की जो है वो PGMI की ईमेल आई हुई है. ठीक है, PGMI change of supervisor account activation. Thank you for registering with PGMI. Please click here to verify and activate your email. You cannot log in until your email is confirmed. Your username and password are as below. तो click here. तो ये आपकी your email address has been verified. Please log in using your CNIC and password. तो आपने वेरिफिकेशन कर ली है. इट्स वेरी सिंपल. दोबारा आप अपना वही CNIC डालेंगे और आप यहाँ से लॉग इन हो जाएंगे.
ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल। जब आप यहाँ पे लॉग इन हो जाएंगे तो आपको अपनी सारी डिटेल्स नजर आ रही होंगी। आपका जितना भी डेटा है वो पीजीएमआई का की सॉफ्टवेयर में फीड है। अब मैं मेरा जो नाम है ये एक डमी नेम है एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड। तो इधर आपका नेम मेंशन्ड है, योर फादर्स नेम, योर सीएनआईसी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, योर ईमेल, योर इंडक्शन सेशन, योर हॉस्पिटल एंड योर स्पेशलिटी, योर यूनिट एंड योर एग्रीगेट। अच्छा, इसमें आई वुड लाइक टू एम्फसाइज कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्पेशलिटी को गौर से देखें और आप अपनी इंडक्शन सेशन को गौर से देखें। ठीक है, क्योंकि लेटर ऑन स्लॉट जो सॉफ्टवेयर है वो इसी स्पेशलिटी और इसी सेशन में आपके लिए स्लॉट एलोकेशन कर देगा। अगर आपको लगता है कि आपका सेशन रॉन्ग है या आपकी स्पेशलिटी रॉन्ग है तो यू इमीडिएटली कॉन्टैक्ट ऑन पीजीएमआई हेल्पलाइन। ठीक है, तो पीजीएमआई टेक्निकल टीम जो है पहले आपके बताए हुए सेशन और स्पेशलिटी को कंफर्म कर लेगी, और अगर हमारी तरफ से कोई इसमें करेक्शन की जरूरत हुई तो वी विल करेक्ट इट इन टाइम। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड विजिलेंट कि आपका सेशन और आपकी स्पेशलिटी जो है वो बिल्कुल करेक्टली मेंशन्ड हो। आप उसके बाद फिर आप जो है इस चेंज ऑफ सुपरवाइजर की जो एप्लीकेशन फॉर्म है जहाँ पे मेरा कर्सर है इसको आप क्लिक करेंगे और आपकी पर्सनल डिटेल्स एक दफा फिर आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, देन यू क्लिक द सेव बटन एंड यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट। यहाँ पे आपका इंडक्शन सेशन, आपकी स्पेशलिटी, आपका हॉस्पिटल यूनिट और आपकी आरटीएमसी की जगह बनी हुई है। अपना आरटीएमसी नंबर ऐड कर लें। ठीक है, और यहाँ पे आप अपनी एक आरटीएमसी जो फाइल पहले से आपने जो सेव की हुई है वो इसमें आप अटैच कर लें। ठीक है, इसी तरह जो एनओसी आपने जो सुपरवाइजर और एसोसिएट डीन से साइन करवा के रखी हुई है अपने पास, उसका भी पीडीएफ आप यहाँ पे अपलोड कर दें। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। ये दोनों चीजें आप अपने मोबाइल सॉरी लैपटॉप में सेव रखें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे कि सारे लोग जो हैं प्लीज प्लीज आई वुड लाइक टू रिपीट कि अपनी रजिस्ट्रेशन और अपनी लॉगिन जो है वो मोबाइल से मत करें। ठीक है, यूज अ प्रॉपर लैपटॉप और अ कंप्यूटर। मोबाइल में आपको सारे टैब्स शो नहीं होते तो आपकी तरफ से मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। आप सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे एक चीज डेफिशिएंट है, एनओसी मैंने टच तो की। ओके, अब यहाँ पे दोनों अटैचमेंट्स आ गई हैं। आई सेव एंड मूव टू द नेक्स्ट। दोनों सेम की हुई हैं इसलिए शायद नहीं, दोनों एक दोबारा पानी, इसको भी कर, आपको भी कर, कर दिए ना। इसको भी कर, फिर से कर। फिर करूँ? जी, इसको मैं देखूँ। मैं डिफरेंट फाइल अटैच कर देती हूँ। नहीं अटैच हुई। ठीक है, दोनों अटैचमेंट जब आप कर लें तो आप नेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने आपकी ही स्पेशलिटी और आपके ही सेशन के जितने यूनिट्स हैं वो विजिबल होंगे। यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, प्लीज सिलेक्ट योर प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस बाय पुटिंग 1 to 8 एंड इफ यू डू नॉट वांट टू ऑप्ट ए यूनिट राइट 0 इन द प्रेफरेंसेस चॉइसेस बॉक्स। मेरे सामने मेरे सेशन और मेरी स्पेशलिटी के सामने सारे यूनिट्स विजिबल हैं। अच्छी तरह सोच के आपने अपने प्रेफरेंसेस पोर्टल को फिल करना है। सपोज मेरी फर्स्ट चॉइस है लेडी रीडिंग हॉस्पिटल यूनिट ए जनरल मेडिसिन, तो मैं उसमें 1 लिख दूंगी। काजी हुसैन अहमद ऊपर लिखा है नौशहरा में, आई डू नॉट वांट टू ऑप्ट, आई विल राइट 0। अयूब में मैं जाना चाहती हूँ, यूनिट जो है वो बी है जनरल मेडिसिन का एंड आई विल राइट 2, सेकंड प्रेफरेंस है मेरी। मर्दान मैंने नहीं जाना, आई विल राइट 0। फिर उसके बाद अयूब टीचिंग हॉस्पिटल यूनिट सी में भी जनरल मेडिसिन का स्लॉट है तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगी। और मैंने जो है कोहाट उसके बाद है, कोहाट मैंने नहीं जाना तो आई विल राइट 0। यूनिट ए यूनिट बी दोनों में हैं स्लॉट्स लेकिन आई वुड नॉट वांट टू गो। डीआई खान में जाना चाहती हूँ तो यस आई विल राइट 4। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आपने जहाँ जाना है वहाँ पे आप अपनी 1 2 3 4 जितनी प्रेफरेंसेस है लिख सकते हैं। जहाँ नहीं जाना यू हैव टू राइट सिंपली 0। You save and move on to the next person. Preferences saved successfully.
अच्छा, अब इसमें देखिए, आपने जो प्रेफरेंसेस डाली थी वो अब विजिबल है आपको, ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर आपको एक चांस दे रहा है कि आप अपनी प्रेफरेंसेस चेंज कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभार लोग गलती हो जाती है, तो सॉफ्टवेयर आपको एक चांस दे रहा है कि आप इसको एडिट कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन है, ये पर्पल बटन जो है, इसको जो आप क्लिक करेंगे यू विल बी एबल टू चेंज, एंड इफ यू आर कंफर्म कि ये बिल्कुल ठीक है, यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट बटन। You will receive a voucher number or the provided mobile number when you click on the generate payment voucher button. It may take 20 to 30 minutes. To pay your voucher, kindly visit your nearest retailer or use Jazz Cash mobile application and pay your amount. अब यहाँ पे जनरेट पेमेंट वोचर है। काइंडली नोट दिस वोचर नंबर, ये वोचर नंबर अपना अपने पास नोट कर लें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास सेव रख लें इसको। आपके मोबाइल नंबर पे भी आ जाएगा, लेकिन कभी कभार मोबाइल नंबर पे वोचर का नंबर आने में कुछ डिले हो जाती है, तो इसको अपने पास सेव कर लें, ठीक है। द डिटेल्स ऑफ वोचर हैव बीन सेंट टू योर मोबाइल नंबर, एंड इफ यू डू नॉट सबमिट योर पेमेंट बिफोर क्लोजिंग डेट, योर एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। क्लोजिंग डेट हमारी 28 जनवरी है, उससे पहले पहले अगर आपने पेमेंट नहीं की तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कुछ लोगों के बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि जायज कैश से पेमेंट कैसे होती है, तो वो बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे प्लीज क्लिक वाली जगह पे आपको तरीका बताया, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक वीडियो आ जाएगी कि हाउ टू कंप्लीट योर पेमेंट। फिर आखिर में एक रेड लाइन है, प्लीज क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन फॉर कंप्लीट सबमिशन ऑफ योर फॉर्म। ये हमने नेक्स्ट क्लिक कर दिया। ओके, दिस इज द लास्ट स्टेप, ठीक है। नो चेंजेस शैल बी पॉसिबल आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्टेप। ऊपर एक रेड लाइन आ रही है, यू हैव नॉट सबमिटेड योर एप्लीकेशन एंड प्रेफरेंसेस अप टिल नाउ। इफ यू डू नॉट सबमिट द एप्लीकेशन यू विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्लॉट एलोकेशन प्रोसेस। कुछ लोग वो नेक्स्ट के बटन के बाद आगे जाने की जहमत ही नहीं करते, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक आपके पास ये वाला पेज नहीं आ जाता, आप बिल्कुल भी इस पे श्योर ना हो। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं अंडरटेकिंग के। आई अंडरस्टैंड दैट चेंज ऑफ सुपरवाइजर इज अलाउड ओनली वंस इन ट्रेनिंग। I will not reclaim my current training slot. In case of refusal penalty by CPSP, I will be responsible. I have not availed change of supervisor opportunity during my previous training. If I am allowed for change of supervisor by PGMI, but I do not avail this opportunity, then I have no objection on any penalty imposed by PGMI. This is very loud and clear. ठीक है, तो इसको आप एग्री कर लेंगे। और नीचे एक और नोट आ रहा है, प्लीज सबमिट वंस यू फाइनलाइज्ड योर एप्लीकेशन एंड प्रेफरेंसेस चॉइसेस। दिस विल लॉक योर एप्लीकेशन एंड प्रेफरेंसेस चॉइसेस एंड एन ईमेल विल बी सेंट टू योर प्रोवाइडेड ईमेल। यू विल नॉट बी एबल टू चेंज ऑल्टर चॉइसेस आफ्टर सबमिशन, ठीक है। ये लास्ट स्टेप है, लॉक माई प्रेफरेंसेस एंड सबमिट। यहाँ पे सिस्टम आपको एक और मैसेज दे रहा है कि आर यू श्योर टू सबमिट योर एप्लीकेशन एंड प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस। इफ यू आर श्योर यू सबमिट द ओके बटन। Your application and preferences has been submitted successfully and email has been sent to your email ID. ठीक है, तो ये आपका डैशबोर्ड है। इस पे दोबारा से वो रेड लाइन जो थी वो अब ग्रीन हो गई है। योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड एंड योर नेम इज इंक्लूडेड इन स्लॉट एलोकेशन एज पर योर प्रेफरेंसेस चॉइसेस सेशन एंड मेरिट। प्रेफरेंसेस आर लॉक्ड। आप पीजीएमआई की सॉरी अपनी ईमेल आईडी दोबारा से चेक कर सकते हैं। वहां पे एक और ईमेल आई हुई है, पीजीएमआई एक्नॉलेजमेंट ऑफ चेंज ऑफ सुपरवाइजर एप्लीकेशन, थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर चेंज ऑफ सुपरवाइजर, यू हैव सबमिटेड द फॉलोइंग प्रेफरेंसेस। आपकी प्रेफरेंसेस आपको शो हो रही हैं, ठीक है। उसके नीचे आपका वोचर नंबर दोबारा मेंशन्ड है। Please pay the application processing fee on this voucher number before closing of portal from Jazz Cash application or nearest Jazz Cash retailer shop. The details of voucher have been sent to your mobile number. If you do not submit your payment before closing date, your application form will be rejected. So this is इस डैशबोर्ड को आपने रेगुलरली विजिट करते रहना है। अनाउंसमेंट के अंदर जो लिंक है उसी को क्लिक करके आपने लॉगिन होना है। वही CNIC वही पासवर्ड आप डालेंगे। जो हमारे पुराने लोग हैं वो बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि वो MIS लॉगिन वाला बटन यूज करके हम क्यों नहीं लॉगिन हो सकते। तो आपने उस MIS बटन के को नहीं यूज करना, आपने इस अनाउंसमेंट में जो मौजूद लिंक है उसी को ही यूज करना है और अपने ही डैशबोर्ड को देखते रहना है। दिन में 2-3 दफा अपने डैशबोर्ड को देखते रहें। दिस इज एनीथिंग लेफ्ट? किसी का रजिस्ट्रेशन में कोई इशू है
अच्छा, एक बात मैं बताना चाहूंगी कि वैसे तो हमारा डेटा जितना भी है सॉफ्टवेयर में इट्स फुली अपडेटेड, लेकिन कुछ लोगों का डेटा अगर किसी से मिस हो जाता है, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन इमीडिएटली ऑन हेल्पलाइन एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई वुड लाइक टू टेक द क्वेश्चन आंसर सेशन। सो जितने भी लोग हैं जो क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो प्लीज रेज योर हैंड्स। You will be given chance to ask your question one by one. Muniba Javed. Muniba Javed, please don't waste our time and or the attendees time. अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो immediately ask your question. किरण नासिर, अपना माइक अनम्यूट कर लें। अजरा मीर, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। शहरियार जेब, शहजाद खान, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, अपने माइक अनम्यूट कर लें। शकील अहमद। जी हेलो। जी। जी जी शहजाद। मिस मैं क्वेश्चन ये है कि इन केस फॉर एग्जांपल मैं आरएमआई से मर्दान जाना चाहता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मेरी जो सीओएस है वो अप्रूव हो जाता है और मैं मर्दान, वो तो डेफिनेट सी बात है, फिर तो मैं चला जाऊंगा। इन केस अगर हम्म ये अप्रूव नहीं होता और मेरी हम्म ट्रेनिंग जो है वो आरएमआई में ऑलरेडी चल रही है, तो उसके हम्म। ऊपर तो कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा ना? नहीं नहीं, देखिए, अगर आपने अपनी प्रेफरेंसेस भी दे दी लेकिन आपको जो है मर्दान में कोई स्लॉट नहीं मिला, ठीक है, तो ठीक है। आप अपने ही यूनिट में रहेंगे। आपने कुछ करना ही नहीं है, आपने तो ठीक है। बस अपने ही यूनिट में रहना है एंड इट विल, योर ट्रेनिंग विल नॉट बी अफेक्टेड। अच्छा ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि इन केस जो जी अभी अभी तो जो टाइम है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट है ना, ठीक है, मतलब डॉक्टर्स भी, सुपरवाइजर्स जी भी सारे जो है ना वो बिजी होते हैं ओटीज में, आगे पीछे सारे हॉस्पिटल में। तो जी इन जी केस अगर जी आपका जी। जो सुपरवाइजर है वो आपको चांस नहीं दे रहा है, मतलब ट्रांसफर के लिए, तो फिर उसके लिए नेक्स्ट क्या प्रोसेस है? मतलब उसके लिए कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए ना, अगर इन नहीं, केस मेरा तब जेन्युइन रीजन है। आपके सुपरवाइजर क्या अवेलेबल नहीं है या आपको परमिशन दी गई? अवेलेबल है, जी। लेकिन वो नहीं दे रहे हैं अभी, मतलब बात हुई है उनसे, लेकिन वो हम्म। नहीं, सही तरीके से बात ही नहीं कर रहे थे। नहीं तो नहीं, अब देखिए, आप आपके सुपरवाइजर को फुल पावर्स हैं। अगर वो नहीं छोड़े तो यस, यू कैन नॉट अप्लाई हाँ, फॉर चेंज। ये क्वेश्चन है ना कि अगर इन केस आपका जेन्युइन रीजन है और फिर भी आपको सुपरवाइजर नहीं छोड़ रहा, तो फिर उस कैपेसिटी में फिर आप क्या करेंगे? देखिए, आप जेन्युइन रीजन आप अपने सुपरवाइजर को एक्सप्लेन करेंगे। पीजीएमआई विल ओनली चेक योर एनओसी। अगर आपकी एनओसी डेफिशिएंट होगी, यू विल नॉट बी अलाउड टू चेंज। तो देखिए, इसमें इस आपके सुपरवाइजर जो हैं उनकी इजाजत के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इन केस मतलब ऐसा इस तरह भी होता है कि आप वो जो आपको जेन्युइन रीजन है वो हम्म सुपरवाइजर नहीं समझ रहा, और फिर भी मतलब आपको नीड है, मतलब इन द वर्स्ट सिनेरियो आप अपनी रेजिडेंसी भी छोड़ देते हैं फॉर एग्जांपल, मतलब उस चीज पे हम्म बात आ जाती है, फिर भी आपका हम्म। सुपरवाइजर आपको नहीं छोड़ रहा, मतलब मुख्तलिफ किस्म के जेन्युइन रीजन हो सकते हैं, तो फिर उस कैपेसिटी में मतलब क्या सोल्यूशन है हमारे पास, एक अल्टरनेट लास्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, ये तो अब सीपीएसपी और सुपरवाइजर का मामला है ना। पीजीएमआई तो इंडक्शन से रिलेटेड है। हम आपको एक स्लॉट दे देते हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो फिर जाहिर बात है आप सीपीएसपी से रब्ता नहीं नहीं, करेंगे। अभी इस पॉइंट पे तो सिर्फ और सिर्फ ईजीएमआई का तो रोल नहीं है ना, इस पॉइंट पे तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एनओसी का रोल है। अगर आप मतलब हजार कोशिश के बावजूद भी आपको एनओसी नहीं दे रहा है, मैंने अभी सुबह उनके साथ बात की है, सीपीएसपी वालों के साथ, तो सीपीएसपी वालों ने कहा हम्म है कि आप कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करें जो पिशावर रीजन है, उनको हम्म। कॉल्स कर रहे हैं, उनको वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं आप सुपरवाइजर से बात करें, तो हमें भी समझ देखिए नहीं आ ना, रहा बात उधर ही आ जाती है ना। बात उधर ही आ जाती है कि आपने सुपरवाइजर से ही बात करनी है। हम सुपरवाइजर की परमिशन के बगैर वी कैन नॉट अलाउ यू फॉर चेंज ऑफ सुपरवाइजर। देखिए, बात हम्म, सुने मेरी। आप शहजाद है ना? जी जी जी। दिस इज नॉट द टॉपिक ऑफ टुडेज वेबिनार। अगर आपको प्रेफरेंसेस पोर्टल से मुतालिक कोई चीज पूछनी है तो प्लीज आप वो नहीं नहीं, डिस्कस। वो तो समझ आ गया, वो तो मैं समझ आ गया। प्लीज, और लोगों के जो है क्वेश्चंस हैं उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, सही ठीक है, थैंक यू। है। हाजरा रमजान। जी, कौन कौन बात कर रहे हैं? मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी, पूछें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैं 2023 जनवरी की ट्रेनिंग हूँ ना, जी और मैं सीनियर सुपरवाइजर के लिए अभी अप्लाई करना चाह रही हूँ। लेकिन जी। जहाँ मैं जाना चाह रही हूँ वहाँ पे जनवरी 2023 का स्लॉट नहीं अवेलेबल, मतलब कोई वैकेंसी नहीं है। बट जुलाई 2023 में वहाँ पे स्लॉट्स हैं। तो क्या मैं हम्म 2022 में उनके स्लॉट्स है ना, तो क्या मैं इस तरह अप्लाई कर हम्म। सकती हूँ कि मैं 2022 नो के स्लॉट पे जाऊँ? नो नो। नो डॉक्टर साहब, नो डॉक्टर साहब, आप तो पहले मुझे जी मैम। बताएं कि आप किसने बताया है कि जनवरी 23 में कोई स्लॉट नहीं है? अभी तो हमने वेकेंट स्लॉट्स ही डिस्प्ले नहीं किए हैं, तो हाउ कैन यू से कि जनवरी 23 में कोई स्लॉट नहीं है?
मैम हम लोगों ने लास्ट टाइम पता करवाया था ना, हमने लास्ट टाइम भी अप्लाई किया था। हम लोग की 6 मंथ कंप्लीट हुए थे, लेकिन वो तो हम एलिजिबल ही नहीं थे। देखिए लेकिन आपका जो ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन थ्री है में। ना, अभी जी जो जी आपने पूछा है कि जनवरी 23 में अभी कोई स्लॉट नहीं है, तो अभी वेबसाइट जी पे सारे स्लॉट्स डिस्प्ले हो जाएंगे। पहली बात ये कि ओके आप अच्छी तरह से लिस्ट को चेक कर लें, ठीक है। जी अगर मैम। आपकी सेशन में आपकी स्पेशलिटी में कोई स्लॉट नहीं है तो यू कैन नॉट अप्लाई इन एनी अदर सेशन। आपको मैंने पॉलिसी भी रीड और कर बता दी है, ओके मैम। सेशन मैम वाइज और एप्लीकेशन होगी जुलाई जी। मैडम 23 पे भी हम अप्लाई नहीं कर No, सकते? no, not at all. Not at all. You are only eligible for January 23 slots. ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर आपको ओके जुलाई मैम। 23 की कोई स्लॉट शो ही नहीं करेगा, वो लॉक लग जाता है उनपे। ठीक ओके है। मैम, मैडम थैंक यू सो मच। ओके। डॉक्टर कायनात। हेलो। जी जी डॉक्टर हाजिर। जी मैम, मैंने पूछना है कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स जरा काइंडली बता दें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने होंगे। कोई सिर्फ देखिए एनओसी ये चाहिए न्यू, और ये या फिर कुछ वेबिनार और जो है? है ना, ये रिकॉर्डेड वेबिनार है, ठीक है। आप ये रिकॉर्डेड वेबिनार लेटर ऑन जो है वेबसाइट पे भी देख सकती हैं, लेकिन आई कैन टेल यू कि जो अटैचमेंट्स हैं वो एक आरटीएमसी है और एक एनओसी है, ठीक है। चलो मैडम ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी जी पूछें, क्वेश्चन हेलो, पूछें। अस्सलाम जी वालेकुम जी। मैडम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम, हमारे ये सीने में सीएमएच नौशहरा में रेजिडेंट सर्जरी, तो जी हमारा जो सुपरवाइजर है वो नवंबर को चेंज हो गया, चला गया, पोस्टिंग हो गई इधर। तो आपको पता है सीएमएच में हर जी टू जी। थ्री मंथ्स बाद पोस्टिंग होती रहती है। तो मैंने हम्म अभी चेंज ऑफ सुपरवाइजर जो विद इन इंस्टीट्यूट जो था वो कर लिया है। तो अभी मैं हम्म। आया इसके लिए एलिजिबल, क्योंकि पिछले साल भी ये मसला हुआ था चेंज ऑफ सुपरवाइजर नहीं, में, तो वो फिर तो। पिछले साल वाला जो मसला है ना वो अब सॉल्व है, ठीक है। आप पॉलिसी अच्छी मैडम तरह रीड कर लें कि तो जिन मैडम लोगों ने ये तो, चेंज ऑफ हाँ सुपरवाइजर ये तो अवेल विद इन किया हुआ इंस्टीट्यूट है। हेलो। है और सीएमएच में तो ये मसले होते रहते हैं। 2 महीने बाद अगर एक दूसरा सुपरवाइजर आ हेलो। गए तो फिर। हाँ, ये आपको मैं पॉलिसी पढ़ के दिखा देती हूँ ना, कि इसमें बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है, चाहे जो भी है, वट एवर इट इज। आपने किसी भी रीजन से अगर कोई अपॉर्चुनिटी अवेल की हुई है तो यू आर नॉट अलाउड टू चेंज योर मैडम सुपरवाइजर। तो हेलो। मैडम हमने तो खुद अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं की है, वो तो सुपरवाइजर चले गए, हमने लाजमी करना था। बस मैं आपको क्या कह सकती हूँ, आई एम हेयर टू टेल यू द पॉलिसी, नॉट टू चेंज द पॉलिसी, ठीक। पॉलिसी यही हेलो। रहेगी। तो हेलो। नहीं मैडम, सोल्यूशन इसका क्या हो सकता है? कोई रास्ता तो होगा ना, इस तरह तो नहीं नहीं, है कोई कि। सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। हेलो। हेलो। शकील हेलो। अहमद। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी जी पूछें, क्वेश्चन पूछें। मैडम एक भाई ने पहले भी ये पूछा है कि सुपरवाइजर साइन ना हो और ये वाला मसला ना, लेकिन इधर सिनेरियो डिफरेंट है। अगर आपका सुपरवाइजर आज अवेलेबल नहीं है और हम जो है ना अप्लाई कर दे, मतलब एनओसी वैसे ही विदाउट सुपरवाइजर के साइन के हम अपलोड कर दें और बाद में हम्म, मतलब सिटी लोकेशन या ये हो जाए, फिर उसके बाद हम हम्म। सर से साइन कर ले, तो उस नहीं कंडीशन में नहीं नहीं मतलब नहीं, आपकी इसमें। एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आपकी एनओसी आपके सुपरवाइजर से साइन नहीं है तो इट विल ऑटोमेटिकली बी रिजेक्टेड। तो मैडम पहले आज अगर ना हो तो मंडे को ही हम फिर सबमिट कर देंगे, नहीं मसला नहीं नहीं है, देखिए, लेकिन अभी नहीं नहीं, अगर वो मंडे को है नहीं हो नहीं। सकता ना। संडे को पोर्टल क्लोज हो जाएगा। आपने अगर एनओसी साइन करवानी है तो हमने जो है अनाउंसमेंट कल रात की दी हुई है। आपके पास आज का पूरा दिन था, तो आपको चाहिए था, आप साइन ले लेते। मैडम ये तो अभी अगर है नहीं ना, वो है नहीं तो हम कैसे लेंगे, मतलब वो यही। तो फिर मंडे को भी नहीं आ सकते, तो क्या पता है वो अगले 10 दिन तक नहीं। ना आए, तो फिर हम अगले Mereka 10 दिन putih तक warna वेट apa करते ya? रहेंगे। Laut di Rosina beri bikin dia suasana atau barna asta. Oke, aku tuh aku sih saya ये waran. तो हमें मैडम वो नहीं करते ना, मतलब अपलोग एफिलिएट नहीं करते, मतलब वैसा ही है कि चेंज ऑफ सुपरवाइजर दिखा दिया और बाकी ऑप्शन हमसे छीन लिए। तो बस ये देखिए, हमारी तरफ से कोई वो नहीं है, हमने आपको फुल चांस दिया हुआ है। और हमारी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जितनी एप्लीकेशंस आती हैं उनको प्रोसेस करना होता है, उनकी स्क्रूटिनी करनी होती है। तो 31 जो है वो बिल्कुल नजदीक है, तो आपके सामने है सारा सिनेरियो। अगर हम जितना लेट करेंगे, प्रॉब्लम आप लोगों को ही होगी, वी विल नॉट बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम, आपको ही रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम होगी। मैडम सिर्फ ये अभी पीजीएमआई के पास ये है ना कि मतलब अगर हम साइन, ये तो सीपीएसपी का आपने जैसे बोला है कि सीपीएसपी का इशू है ना, चेंज ऑफ मतलब साइन, सुपरवाइजर का साइन।
लेकिन अभी हम सिर्फ इन सीवीसी अपलोड कर दे साइन के बगैर, बाकी जो हमें स्लॉट मतलब एलोकेट हो जाए उसके बाद हम सीपीएसपी और वो वाला मसले खुद देख लेंगे। लेकिन अभी ये पीजीएमआई से ये वाला मसला कम से कम नहीं नहीं निकालना चाहिए ये नहीं नहीं, साइन का, देखिए आप तो इतना शॉर्ट आप टाइम। आप पॉलिसी को फॉलो करें, ठीक है? प्लीज, मैं क्वेश्चन बार बार नहीं रिपीट कर सकती, आई हैव टू टेक अदर क्वेश्चंस एज वेल। राशिद अली, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। इजाज अहमद, अजरा मीर। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। मेरा आपसे जी जी। सवाल ये है कि फॉर जी एग्जांपल मुझे पीजीएमआई में स्लॉट मिल जाती है और मैं सीपीएसपी को इन्फॉर्म कर देता हूँ, और लास्ट टाइम पे सीपीएसपी मेरा फॉर्म मतलब मेरी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देती है, हम्म और स्लॉट मुझे पीजीएमआई में, जिसमें एनओसी पे हूँ ना, मैं कराची में एनओसी पे हूँ, तो अगर मुझे हम्म। सीपीएसपी रिजेक्ट करती है और पीजीएमआई मुझे स्लॉट दे देती है, दैट उस कंडीशन में फिर क्या होगा, मेरे पास ऑप्शंस फिर देखिए, क्या जब होंगे? हमारा ऑफिस ऑर्डर जब आ जाता है ना, तो उसमें बड़ा क्लियरली लिखा होता है कि जो री रजिस्ट्रेशन है दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट। अगर सीपीएसपी आपको रिजेक्ट कर देगी तो यस, यू हैव टू रिमेन इन योर ओल्ड इंस्टीट्यूट या प्रीवियस इंस्टीट्यूट, ठीक है? नहीं, आपको पीजीएमआई मेरी तरफ, पीजीएमआई की तरफ से तो मुझे कोई मसला नहीं होगा ना, वो तो मतलब वो मसला तो नहीं नहीं करेगा नहीं नहीं, सैलरी देखिए में कोई इस तरह? हमारी तरफ से कोई मसला नहीं है, लेकिन आप हमें इन्फॉर्म कर देंगे विद एविडेंस कि जी सीपीएसपी ने मुझे ये रिफ्यूजल कर दिया, तो ठीक है, फिर जो है हमारी तरफ से कोई मसला नहीं होगा, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। सलामकुम मैडम। वालेकुम सलाम। जी जी। मैडम ये अस्सलाम वालेकुम अगर मैडम। सुपरवाइजर अवेलेबल नहीं है ना, और वार्ड में कोई दूसरा सुपरवाइजर है, तो आप उससे साइन कर सकते हैं? हाँ, अगर वो सुपरवाइजर उनके बिहाफ पे साइन करने के लिए एग्री होते हैं और तो यस, वेरी गुड, तो आप उनसे साइन ले सकते हैं। ठीक है मैडम। मैम और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं थोड़ा लेट आया था क्योंकि मैं ड्यूटी थी ना, तो एनओसी जी। का पैटर्न बता दें कि वो अपलोड होगा या हम अपने मतलब नहीं नहीं, वार्ड। आप एक हैंड रिटन एनओसी आप लिखेंगे, अपने सुपरवाइजर या एसोसिएट जिनको एड्रेस करेंगे, उसमें अपनी ठीक। मुकम्मल डिटेल्स लिखेंगे कि मेरा नाम ये है, मेरा यूनिट ये है, CNIC RTMC, ऑल योर डिटेल्स, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर, एवरीथिंग। इट शुड बी ठीक। साइंड बाय योर सुपरवाइजर एंड एसोसिएट टीम, ठीक है? ठीक है, थैंक यू मैडम। इत्तेशामुल। अस्सलामुअलैकुम। जी डॉक्टर साहब। जी जी। मैडम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो एनओसी है इसमें रीजन फॉर द चेंज ऑफ सुपरवाइजर मेंशन करना मस्ट है कि नहीं? जी जी, बिल्कुल और मेंशन कर लें, आप बिल्कुल मेंशन कर लें। कि नहीं, वो एप्लीकेशन में लिख सकते हैं, एप्लीकेशन अगर हम लोग सेंड करेंगे उसमें मेंशन कर दे हाँ रीजन बिल्कुल, फॉर द अपने चेंज। हाथ से ही लिखें। देखिए, हमने आपको फैसिलिटेट करना है ना, अब हम आपको बाउंड नहीं कर सकते कि ये प्रोफार्मा है इसी को फॉलो करें। अपनी हैंड रिटन एप्लीकेशन है, उसमें ही रीजन मेंशन कर लें बस, और फिर और हम अगर रीजन मेंशन ना हो और हम सेपरेट वो कर दे, उसमें अटेस्ट कर दे रीजन ठीक फॉर है, द चेंज ऑफ रीजन मेंशन सुपरवाइजर। कर लें तो इट्स गुड, इट्स गुड कि आप रीजन मेंशन कर लें, बट इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं उनकी ये है कि इट मस्ट बी साइंड बाय क्योंकि डीन। क्योंकि मैडम से एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो। जी पूछें, आप क्वेश्चन पूछें। दूसरी बात ये कि जो रेफरेंसेस है हम लोग जो हॉस्पिटल के लिए देंगे मैक्सिमम कितने दे सकते हैं? देखिए, आपके यूनिट में जितने स्लॉट होंगे ना वो आपके सामने नजर आ रहे होंगे। अगर जी। आपके यूनिट में और आपके सेशन में और आपकी स्पेशलिटी में वहां पे 10 स्लॉट हैं तो आपको 10 नजर आ रहे होंगे, और अगर एक है तो एक नजर आ रहा होगा। तो इट ऑल डिपेंड्स कि वहां पे वेकेंट स्लॉट्स कितने हैं और किस किस यूनिट में हैं, तो और किस किस हॉस्पिटल में हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है? चलिए सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी। मैम मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो ये कि मैडम जो वैकेंट स्लॉट्स की लिस्ट है वो कब तक लग जाएगी, क्योंकि अगर पोर्टल बस में हमें एक लिस्ट। घंटे तक लग जाएगी। जी जी जी, ठीक है, बिल्कुल, और आई मैम कैन और अंडरस्टैंड। जी जी। मैम, और दूसरा क्वेश्चन ये कि अगर हम सुपरवाइजर से एनओसी पे साइन कर ले और ट्रेनिंग ब्रांच से ना हो पाए तो वो एक्सेप्ट हो, क्योंकि मैडम एमएच और सीएमएच में ये होता है कि ट्रेनिंग ब्रांच का जो प्रोसीजर होता है वो कम से कम एक वीक लेता है, कि आप सबमिट जी। करते हो, फिर वो थ्रू प्रॉपर चैनल आगे पुट अप होता है और वो साइन आप होके अभी वापस कहाँ पे इसमें हैं? एक वीक। अभी कहाँ पे मैम हैं आप? एमएच में मैम। अच्छा, तो ट्रेनिंग ऑफिसर जो हैं वो भी टाइम लेते हैं साइन करने में? मैम वो टाइम लेते हैं क्योंकि वो प्रॉपर थ्रू प्रॉपर चैनल उनके पास जाएगा, सुपरवाइजर साइन कर लेगा, सुपरवाइजर से तो हम खुद मिलके साइन ले लेते हैं। ठीक तो है। अगर सिर्फ सुपरवाइजर का साइन हो जाए और जो ट्रेनिंग ब्रांच का साइन है वो बाद में हो जाए तो उस पर तो, क्योंकि मेन चीज तो हाँ, सुपरवाइजर है, आप खुद आपने कहा कि जी पावर सुपरवाइजर के पास है। जी तो अगर बिल्कुल। सुपरवाइजर का साइन हो और ट्रेनिंग ब्रांच का साइन ना हो तो विल इट बी ठीक है, एक्सेप्टेबल?
तो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट जो है या हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो अवेलेबल हैं आपके? मैडम सुपरवाइजर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट एक ही है हमारा। एक ही है तो बस ठीक है, जी इट्स ओके। हेड ऑफ डिपार्टमेंट अगर सुपरवाइजर ही हैं तो देन इट्स जी एक्सेप्टेबल। और अगर आपके ट्रेनिंग ऑफिसर के बिहाफ पे कोई और साइन कर सकता है तो इट्स मैम, वो ऑल्सो एन क्योंकि ऑप्शन। वो जो ट्रेनिंग ब्रांच से जो चीज जाएगी वो ट्रेनिंग ऑफिस से कमांडेंट के ऑफिस जाएगी और उधर से साइन होके वापस आएगी, वो डायरी नंबर और वो सब कुछ, तो वो एक ठीक है वीक ठीक का है, बस कम लगेगा। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो हमें पता है, लेकिन ये है कि अगर हेड ऑफ इंस्टीट्यूट या हेड ऑफ डिपार्टमेंट इज द सेम एज सुपरवाइजर देन इट्स जी एक्सेप्टेबल। सुपरवाइजर और जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट और एडवाइजर न्यूरोलॉजी है वो हाँ तीनों एक लेकिन ही है। फिर भी आप कोशिश कर लें क्योंकि जी मैम, टाइम तो है आपके कोशिश तो पास, हम डेफिनेटली अगर मैम हो सकता है तो ठीक है। जी मैम 5 बजे तक तो टाइम है, ऑफिस टाइमिंग है आज हमारे पास, उस तक का हम ट्राई करेंगे, लेकिन अगर ना हो सके बिल्कुल तो आप ट्राई करें, ठीक है आप ट्राई कर लें। क्योंकि अभी तक और जब अगर नहीं होता तक लिस्ट जी क्योंकि जब तक लिस्ट नहीं आई तो हम प्रोसीजर भी उस लेवल तक आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि लिस्ट में पता ही नहीं है कि बिल्कुल सीट आएगी भी कि हमारी कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बस हम वेकेंट जी स्लॉट्स मैम थोड़ी देर में डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम, अस्सलाम थैंक यू। वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, जी जी। मैम अगर किसी इंस्टीट्यूट में सुपरवाइजर छुट्टी पे हो और हम्म, एक्टिंग सुपरवाइजर अगर उसके ऊपर साइन कर ले तो ये एक्सेप्टेबल है? जी जी, बिहाफ पे साइन होता है। अगर आप उनके बिहाफ पे कोई और साइन करने के लिए विलिंग है तो यस दैट विल बी एक्सेप्टेबल। तो उसके ऊपर फिर वो नाम चेंज करना पड़ेगा नहीं, उसी के ऊपर देखिए इस दूसरा तरह अगर होता है ना काउंटर? कि जो आपके एक्टिंग सुपरवाइजर हैं वो फॉर्म में साइन करते हैं, ठीक है, और जी स्टैंप भी लगा देते हैं। अगर आपके एक्चुअल सुपरवाइजर का स्टैम्प है वो भी लग सकता है, और आपके बिहाफ पे जो कर रहे हैं उनका स्टैम्प भी लग सकता है, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। नायाब, डॉक्टर नायाब, डॉक्टर हलीम, डॉक्टर वर्दा, डॉक्टर अलाउद्दीन। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम जिस तरह पहले बताया गया हमारा भी ये चेंज ऑफ सुपरवाइजर विद इन इंस्टीट्यूट पहले हो गया है ना मैडम, जी हमारे जी सुपरवाइजर थे वो रिटायर्ड हो गए थे। जी जी। तो ऑब्वियसली हमें तो दूसरे सुपरवाइजर से फिर करना था रजिस्ट्रेशन। हम्म। और अब जेन्युइन रीजन है कि हम चेंज ऑफ सुपरवाइजर कराना चाहते हैं, तो कोई पॉसिबल सोल्यूशन इसके लिए नहीं होगी जी? देखिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे चुकी हूँ ना, ठीक है, और आई ठीक एम है हेयर मैम। टू ओनली नरेट द पॉलिसी। जो पॉलिसी है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने अप्रूव की हुई है, तो आप प्लीज पॉलिसी को फॉलो कर लें, ठीक है। जी मैम। हेलो मैम। हेलो। जी 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 पूछिए। मैम। हेलो मैम। जी जी, अगर वन बाय वन। सुपरवाइजर और अगर सुपरवाइजर और एसोसिएट से अलग अलग पेज पे मतलब एनओसी ले सकते हैं, मैंने तो अलग अलग पेजेस पे लिए, फिर एक पीडीएफ क्यों अपलोड करेंगे, ये हाँ जी ठीक है? बिल्कुल, दो पेजेस को एक ही पीडीएफ में लगा के तो आप अपलोड कर लें, हाँ ठीक। ओके थैंक हेलो मैम। जी जी हेलो पूछें। जी जी। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर जो स्पेशलिटी टीएमओ है अगर वो फ्री आई मैम चेंज ऑफ सुपरवाइजर कर दी, तो क्या फर्स्ट टाइम में अगर उसको किसी दूसरे हॉस्पिटल में सीट मिल जाए तो क्या फिर वो चेंज ऑफ सुपरवाइजर कर सकती है? हाँ वो देखिए, प्री आईएमएम इज समथिंग एल्स एंड पोस्ट आईएमएम तो हम आपके लिए हॉस्पिटल डिफाइन करेंगे ना, वो आप नहीं डिफाइन करेंगे। प्री आईएमएम के लिए जो सेशंस हैं वो पॉलिसी में अपलोड हैं, तो वो आप फॉलो कर लिए। अगर आप उन सेशन में फॉलो करते हैं तो यस यू आर एलिजिबल। पोस्ट आईएमएम तो हम आपको स्लॉट अलॉट करते हैं ना। नहीं मैम, मेरा मतलब ये है कि अगर फर्स्ट टाइम में अगर फिर अगर किसी ऐसे हॉस्पिटल में हो जाए कि हम दोबारा चेंज ऑफ सुपरवाइजर करना चाहते हैं ना, तो फिर अगर उस टाइम फिर हम कर सकते देखिए हैं वो उस वक्त कहीं? की पॉलिसी तो मैं कुछ नहीं कह सकती ना कि उस वक्त क्या पॉलिसी होगी, लेकिन जो पॉलिसी होगी उस टाइम की फिर उसको फॉलो किया जाएगा। नहीं, मेरा मतलब ये है मैम कि यहाँ पे पॉलिसी में लिखा है कि आप चेंज ऑफ सुपरवाइजर सिर्फ एक मरतबा कर सकते हैं ना। अगर हम अभी चेंज ऑफ सुपरवाइजर कर दी तो पोस्ट टाइम में अगर हमें किसी दूसरी हॉस्पिटल में स्लॉट मिल जाएगा अगर जो हमें वहाँ पे हमारे लिए मतलब उधर स्टे करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर हम हम्म। दोबारा चेंज ऑफ सुपरवाइजर कर सकते हैं अगर चेंज देखिए ऑफ वो मैं सुपरवाइजर आपको अगर वही स्लॉट बात, की। मेरा आंसर वही रहेगा कि ये उस टाइम की पॉलिसी पे डिपेंड करता है ना। मैं अभी आपको इस बारे में इन फ्यूचर तो कोई रिप्लाई नहीं दे सकती ना कि उस टाइम पे क्या पॉलिसी होगी। तो ये तो जब मैडम। आप पोस्ट में चले जाएंगे सब स्पेशलिटी में तो ये उसके बाद ही कोई पॉलिसी बन जाएगी, तो फिर वो तो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है ना। तो अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम। जी जी पूछें पूछें। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी वालेकुम सलाम, पूछें। मैडम एक ट्रेनी मतलब सबसे मैक्सिमम कितने वो दे सकते हैं, ऑप्शन कितने हैं, हॉस्पिटल कितने प्रेफरेंसेस दे सकता है एक जितने ट्रेनी? हॉस्पिटल्स में आपके सेशन में स्लॉट्स होंगे वो सारे हॉस्पिटल्स आपको शो हो रहे होंगे, ठीक है। सपोज अगर आप जनरल मेडिसिन में जाना वो चाहते सारे हैं दे सकते हैं? और हाँ, जब जी मैम। सपोज आप मेडिसिन में जाना चाहते हैं और आपके ही सेशन जनवरी 22 है
और उसमें जो है वो हमारे पास LRH में भी स्लॉट है, KTH में भी है, HMC में भी है, और सैदू में भी है, मर्दान में भी है, DI खान में है। तो अगर इन सब हॉस्पिटल्स में वेकेंट स्लॉट्स हैं तो वो आपको शो हो रहे होंगे, जहाँ वेकेंट स्लॉट्स नहीं होंगे वो आपको नहीं शो हो रहे होंगे। ठीक है। मैडम अगर ओके एक मैडम, स्लॉट थैंक्स। पिछली दफा में एक स्लॉट जनवरी 21 सेशन में नहीं था, तो मोस्ट प्रोबब्ली इस सेशन में भी नहीं होगा ना, इसी तरह है। देखिए ये जो है ना स्लॉट्स हमें इंस्टीट्यूट्स की तरफ से आते हैं ना, हम स्लॉट्स खुद नहीं कैलकुलेट करते। तो इंस्टीट्यूट्स जो हमें स्लॉट्स भेजते हैं वही फाइनल होते हैं। तो ये उनकी अपनी कैलकुलेशन होती है। तो आई कैन नॉट से कि वो उस वक्त था तो अब होगा या नहीं होगा, लेकिन उनकी तरफ से जो लेटर आता है हम उसी को फाइनल लेते हैं। ठीक। और मैडम मैडम अगर अगर हम सीपीएसपी फॉर एग्जांपल आप हमें स्लॉट दे देती हैं, तो हम सीपीएसपी में अप्लाई कब करें? अभी से कर दें कि नहीं, जब स्लॉट नहीं मिल जाए नहीं तब नहीं, करें? जाहिर बात है आप अभी CPSP में क्या अप्लाई करेंगे कि मुझे कहाँ स्लॉट मिला है? जाहिर बात है हमारा ऑफिस ऑर्डर जब आ जाएगा तो उसके बाद ठीक ही है। आप CPSP में अप्लाई करेंगे ना। और मैडम वो कब तक आएगा, क्योंकि 31 तक तो आरटीएमसी की लास्ट डेट है देखिए ना? यही बात आपने जो है बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, क्योंकि 31 बहुत नजदीक है, इसलिए हमने बहुत शॉर्ट टाइम लिमिट लिख रखी है। और बहुत लोग कह रहे हैं कि मंडे को एक्सटेंड कर दें, तो हमने इसीलिए संडे को लास्ट डेट रखी है, ताकि हमारे पास 29, 30 और 31 को प्लेसमेंट ऑर्डर के लिए भी और आप लोगों के पास भी 2 दिन का मार्जिन हो कि आप जाएं और CPSP में अप्लाई कर लें। ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैडम। मैडम ये जो मतलब जिस तरह नॉन एमटीआई हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ से आप एमटीआई हॉस्पिटल्स में ही सिर्फ जा सकते हैं, या नॉन जी एमटीआई से बिल्कुल। नॉन एमटीआई भी हो सकता नहीं, नॉन पब्लिक सेक्टर में ही ट्रांसफर अलाउड है। जितने भी वेकेंट स्लॉट शो होंगे वो MTIs के ही शो होंगे। यू कैन कम फ्रॉम नॉन MTI टू MTI, बट यू कैन नॉट गो फ्रॉम नॉन MTI टू नॉन MTI। मैडम है? थैंक यू मैम। जी। मैम अगर आपका सुपरवाइजर आपके लिए साइन ना कराओ, लेट्स सपोज ऐसी सिचुएशन है, तो उसमें फिर हम क्या कर सकते हैं उस हालत में? देखिए ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है ना। तो अगर आपका सुपरवाइजर विलिंग नहीं है तो ही हैज फुल पावर्स, तो हम आपकी NOC फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मैम अगर अभी लेट्स सपोज जनवरी 2023 का कैंडिडेट हो, तो अगर ये स्लॉट्स मतलब जनवरी 2023 के जुलाई में भी होंगे, नहीं, जो आपको अपना ही सेशन जनवरी कराना होगा। 2023 वाले जुलाई में नहीं अप्लाई कर सकते? नो, आप अपने ही सेशन की देखिए, इसमें अप्लाई का कोई काम ही नहीं है ना। आपका जो सेशन है उसी के स्लॉट्स आपको शो हो रहे होंगे, बस इसके अलावा आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा। तो मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि जुलाई में भी 23 के स्लॉट्स शो हो रहे होंगे, वो फिर हमारी मर्जी कि हम लें या ना लें। जुलाई, आप किस जुलाई की बात कर रही हैं? इस ये कमिंग जुलाई, इसमें लाइक आपको अगर कोई बाद में चेंज ऑफ सुपरवाइजर हाँ हाँ करना बिल्कुल चाहता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, उस वक्त फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो वेबसाइट पे आ जाएगा। तो अभी आप फ्यूचर के बारे में ना पूछें ना, अभी करंट सेशन के बारे में क्वेश्चन पूछें। हेलो मैम। जी जी पूछें। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जो लोग सब पोस्ट टाइम में वो ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप वो चेंज ऑफ सुपरवाइजर कर सकते हैं? नाउ दे आर अलाउड? यस, उनका सेशन मेंशन्ड है ना, अनाउंसमेंट आप देख लें। तो उसमें जो लोग पोस्ट IMM यानी कि पल्मो, न्यूरो, नेफ्रो, कार्डियक सर्जरी, थोरेसिक, प्लास्टिक एक्सेट्रा में हैं, तो उनका कुछ सेशंस हैं जो कि एलिजिबल हैं उस सेशन में लोग। तो वो आप तो मैम अनाउंसमेंट। हाँ मेरा क्वेश्चन ये था कि CPSP सिर्फ वन टाइम अलाउ करती है। अगर ये लोग अगर उनको जब चेंज ऑफ सुपरवाइजर अलाउ है, तो अगर उन्होंने एक मरतबा चेंज ऑफ सुपरवाइजर किया है तो आर दे आर अलाउड टू डू इट अगेन? वो देखिए वो समथिंग एल्स है ना, वो चेंज ऑफ सुपरवाइजर नहीं है, वो शिफ्ट ऑफ ट्रेनिंग है ना, वो 1+3 फॉर्मूला है, सॉरी 2+3। तो वो तो चेंज ऑफ सुपरवाइजर है ही नहीं। आप तो अगर अलाइड में हैं तो 2 साल से ज्यादा तो आप रह ही नहीं सकते ना उस सुपरवाइजर को। तो आपके RTMC में भी लिखा होता है कि मस्ट मूव टू स्पेशलिटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 years। दैट इज नॉट चेंज ऑफ सुपरवाइजर, दैट इज चेंज ऑफ ट्रैक। ओके मैम। सो अगर और कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं लोग तो प्लीज यू आर अलाउड टू आस्क योर क्वेश्चंस। अगर किसी के क्वेश्चंस रह गए हैं या किसी को मैडम कुछ फाइनल समझ मेरिट नहीं लिस्ट आई कब है। अपलोड होगा? फाइनल मेरिट लिस्ट कब अपलोड होगा? मेरिट लिस्ट आपकी सॉरी, मेरिट जो है नहीं वो मैं आप। सॉरी, हाँ जी, स्लॉट एलोकेशन कब होगी फाइनल, मतलब कब तक फाइनल हो जाएगी? फाइनल स्लॉट एलोकेशन की बात कर रहे हैं आप? जी जी। मंडे को हो अस्सलाम जाएगी। वालेकुम। जी मंडे को हो ठीक है। जाएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मैडम। सलाम। जी जी पूछें। मैडम इन केस अगर एसोसिएट डीन अवेलेबल ना हो, तो हम अगर वार्ड के HOD से अटेस्टेशन करा रहे तो वो एप्लीकेबल होगा? अगर आपके बोर्ड के HOD एसोसिएट डीन के बिहाफ पे साइन कर सकते हैं तो यस, इट्स एक्सेप्टेबल।
डॉक्टर आसिफ। अस्सलाम वालेकुम मैम। आसिफ जी जी, वालेकुम सलाम। मैम मैं जुलाई 2023 का ट्रेनी हूँ और जनरल सर्जरी का हूँ। जुलाई 23 का? जी मैम, जुलाई 23। जुलाई 23 तो हमारे पास दे आर नॉट एलिजिबल। और मैम अगर फॉर एग्जांपल मेरा जो है सुपरवाइजर वो अक्टूबर 2023 में रिटायर हो चुका है, हम्म। तो मैम मैं चेंज ऑफ सुपरवाइजर करा सकता हूँ कि नहीं करा सकता अभी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करा सकते। ये पॉलिसी में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैम फिर मेरे केस में क्या पॉलिसी होगी? मैं जो है थ्रू पीजीएमआई अपना सुपरवाइजर तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कंटिन्यू तो नहीं कर सकता। मैं प्री आईएमएम हूँ, मैंने आईएमएम के लिए अपीयर होना है, अपनी एंट्रीज करनी होती है, वो सुपरवाइजर ने अप्रूव हाँ, करनी होती है। तो तो मैं देखिए बस ये तो हमारी पॉलिसी है ना कि आपने एक दफा अगर चेंज अवेल किया है ड्यू टू एनी रीजन, वॉट एवर इज द रीजन, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। और वैसे भी अभी तो आपके 6 महीने हुए हैं, ये तो आप तो वैसे भी नॉट एलिजिबल है ना अभी। तो जी आप जी। जुलाई 24 का वेट कर लें, मे बी उस वक्त तक पॉलिसी कुछ और हो तो यू कैन अप्लाई इन दैट सेशन। ओके मैम, तो अभी जो है अगर बिलफर्ज अभी मैंने दूसरा जो है सुपरवाइजर मैंने उसके साथ वो नहीं की, अराइवर नहीं की, मैं विदाउट सुपरवाइजर हूँ, तो उस कंडीशन में फिर क्या पॉलिसी होगी? मैं विद इन वार्ड अपना सुपरवाइजर चेंज करूंगा या क्या करूंगा? हाँ जी, विद इन, अगर आपके वार्ड में अगर कोई और सुपरवाइजर मौजूद हैं तो आप बिल्कुल भी अपना वार्ड और अपना इंस्टीट्यूट नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। आपने उसी में यूनिट में ही किसी और सुपरवाइजर के पास अपने जो है री रजिस्ट्रेशन करनी होगी, एंड प्लीज डू इट इमीडिएटली। अगर आपका ये गैप पीरियड आ गया तो फिर सीपीएसपी आप पे पेनल्टी भी लगा सकती है। तो अच्छा मैम, तो ठीक है ठीक अभी मुझे वार्ड में ही सुपरवाइजर चेंज करना पड़ेगा। फिर मैं एग्जैक्टली। जुलाई 24 में फिर अगर इन केस चेंज ऑफ सुपरवाइजर वाली पॉलिसी आती है नोटिफिकेशन, तो पे वो वाली चांस में अवेल कर सकता हूँ फिर? वो उस वक्त की पॉलिसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकती उस बारे में। अच्छा मैम, और अभी 6 मंथ्स वाले इसमें वो नहीं है मैम, मतलब नहीं नहीं, कर दे आर सकते? नॉट एलिजिबल जी। ओके ओके मैम, नहीं नहीं थैंक यू नहीं, दे आर थैंक नॉट एलिजिबल, ठीक है। यू। ओके मैम, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। सो इफ देयर आर नो मोर क्वेश्चंस वी कैन एंड दिस सेशन। आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस समझ नहीं आ रही या अनआंसर्ड हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन हेल्पलाइन। जो सैटरडे को भी हमारी हेल्पलाइन ऑन रहेगी, संडे को भी ऑन रहेगी, और आज भी ऑन रहेगी। आप हमसे क्वेरीज पूछ सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर जो है व्हाट्सएप का वो अनाउंसमेंट में दिया गया है। तो आई विश ऑल ऑफ यू तक। हेलो, तो अस्सलाम थैंक यू वालेकुम एंड गुड बाय। मैम।